أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي وأتوب إليه۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ ہے کتب اربعہ میں، اربعہ یعنی عربی کے اعتبار سے چار کو اربعہ، چار کتابیں جو ہم شیعوں کی مضبوط ہیں، ان میں سے ہم لوگ چوتھی کتاب کے بارے میں تھوڑی سی اس کی معلومات۔ پہلی کتاب پھر سے یاد کرا رہے ہیں، پہلی کتاب شیخ طوسی کی کافی ہے، شیخ طوسی نہیں، شیخ یعقوب کلینی کی کافی ہے۔ دوسری کتاب من لا يحضره الفقیہ، کس کی ہے یہ؟ شیخ صدوق کی۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی کتاب تہذیب الاحکام اور استبصار، یہ دونوں کتاب شیخ طوسی کی ہے۔ تہذیب کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے یعنی دو ہفتے پہلے جو بات ہوئی تھی، تہذیب الاحکام اصل میں شیخ مفید کے خاص شاگرد ہیں شیخ طوسی، اور ان کو شیخ طوسی کے شیخ مفید کے علاوہ علم الہدا کا بھی زمانہ ملا انہیں، یعنی سید مرتضیٰ۔ سید مرتضیٰ بہت مہارت رکھتے تھے علم فقہ میں خاص، اور سید رضی بلاغت میں جن کی بہت اچھی پہچان تھی، بہت اچھی معلومات، بہت اس میدان کے ماہر تھے سید رضی۔ سید رضی ظاہراً کوئی کتاب یاد ہے سید رضی نے کوئی کتاب لکھی ہو اور جمع کی ہو؟ ہے کچھ ذہن میں؟ نہج البلاغہ، جی، تو سید رضی ایک نہج البلاغہ جیسی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، مولا کائنات کی اقوال بہت ہیں، ان کے اقوال بہت ہیں، مگر سید رضی نے بلاغت میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے صرف ان چیزوں کو اٹھایا ہے کہ جو ان کے اعتبار سے بہت بلاغت جس میں نظر آتی ہے۔ حالانکہ اگر بعد میں دیکھا جائے تو خود اور بھی بہت سے ایسے خطبے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں آئی، مگر سید رضی نے کسی وجہ سے شاید اسے نہیں لکھا، یا ان کے لکھنے کا جو بھی معیار رہا ہو اس کو انہوں نے مد نظر رکھا۔ جیسے ادب میں بہت سی چیزیں ہیں، کوئی کس چیز کی رعایت کر رہا ہے اس کتاب کو جمع کرنے میں، تو سید رضی کا ایک نام، اور سید مرتضیٰ۔ ایک واقعہ سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کا بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ شیخ مفید کے خاص شاگرد ہیں سید رضی اور سید مرتضیٰ، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہزادی نے سید رضی اور سید مرتضیٰ کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سید شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ خواب میں شہزادی آئی ہے، اور ایک ہاتھ میں ایک بچہ ہے اور ایک ہاتھ میں ایک بچہ، اور آگے کہہ رہی ہیں یا شیخ، اے شیخ، علم، تعلیم دو، ہما، ان دونوں کو تعلیم دو، یعنی ان دونوں کو پڑھاؤ۔ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین۔ شیخ مفید رات بھر پریشان رہے کہ بھائی یہ خواب معصوم کا آنا، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت غور و فکر کیا۔ صبح پہلے کے علماء، یہ مدرسہ کا معاملہ یہ اس طرف ہوا ہے نا، پہلے ایسا تھا نہیں، وہی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے ٹیک لگا کے، وہیں پہ کلاس شروع ہو جاتی تھی، وہیں صبح کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھا سامنے سے کوئی آ رہا ہے، سیم وہی کنڈیشن، دو بچے ہیں ہاتھ میں، آ کے وہی جملہ بولا، شیخ ان دونوں کو پڑھا دو۔ ان کو تعبیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ دونوں کون ہیں، یعنی سید رضی اور سید مرتضیٰ، ان کو شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، اب اس واقعے کو اس سے ملائیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شیخ مفید بھی علم فقہ میں ماہر، اور سید مرتضیٰ بھی بہت، علم الہدا انہیں کہا گیا، ان کا لقب علم الہدا، ہدایت کا علم، پرچم۔ تو
एक लिबास है, उस लिबास पे उस्ताद भी दलील दे रहे हैं और शागिर्द अलमुल हुदा यानी सैयद मुर्तजा भी दलील दे रहे हैं। उस लिबास के ऊपर जो भी, यानी शेख मुफीद कह रहे हैं कि मैंने देखा है, शेख मुफीद कह रहे हैं कि मैंने इस तुम्हारे लिबास को नजीस होते हुए, ये लिबास नजीस है, फला जानवर उसने ये किया है। वो कहते हैं कि मैं आपकी बात को यकीन के साथ मानता हूँ, जानता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, सब कुछ हैं आप मेरे, मगर इसके लिए 2 गवाह चाहिए और आप अकेले हैं। मैं आपका एहतराम करता हूँ, सब कुछ है। बात काफी दलील पे दलील चलती रही। वो आखिर में तय हुआ कि चले नजफ में मौलाए कायनात से पूछते हैं। और वहां पे 3 तरह से जिक्र की है रिवायत, 3 तरह से है। एक ये कि खत लिखा, उसका जवाब आया एक आवाज के जरिए और एक ख्वाब के जरिए, 3 तरह का जवाब। उसमें शेख मुफीद को जवाब ये मिला, या शेख, ऐ शेख, अंत मुअतमदी, तुम पर हमारा एतमाद तो बहुत है, वल हक़ मा वलदी, लेकिन हक तो मेरे बेटे सैयद मुर्तजा के साथ है। यानी एक तरफ शहजादी दोनों को बेटा कह रही हैं और एक इस वाक़े में मौलाए कायनात अपना बेटा किसको कह रहे हैं? अलमुल हुदा को। और मैंने कहीं पढ़ा नहीं है मगर एक मोतबर अच्छे मुहक्किक की जबान से सुना है, अच्छे मुहक्किक की जबान से, कि मौलाए कायनात का लहजा, यानी अली के लहजे में जब भी गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश होती थी तो शेख मुफीद अलमुल हुदा से कहते थे तुम गुफ्तगू करो। पता नहीं मौलाए कायनात का लहजा उन आलिमों ने कैसे सुना और क्या है वो सारी चीजें, मगर है हमारे यहाँ मुमकिन है, हो सकता है। हमारे यहाँ अहले बैत से जिनके रवाबित बहुत अच्छे हैं, जिनके ताल्लुकात और हैं, अहले बैत ने हमेशा साथ दिया। शेख मुफीद का वो वाक़या मशहूर वाक़या है। शेख मुफीद ने कहा, आके लोगों ने पूछा कि एक लेडीज है, उसका इंतकाल हो गया है और उसके पेट में बच्चा है, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जाओ दफन कर दो। फिर पता चला बीच में जिसको इन्होंने बताया था और किसी ने आके कहा बीच में कि नहीं, जाओ पहले पेट से बच्चा निकालो उसके बाद दफन करना। कुछ दिन के बाद वही आदमी आया शेख मुफीद के पास, आपका फतवा बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा फतवा, बीच में कहा हुआ क्या? कहा आपने तो हमसे ये कहा था और फिर अपना ही आदमी किसी को भेज के हमको बीच में बता दिया कि वो इस तरह से। फिर ये सोचने लगे कि ये हमारा तो फतवा था, ये आखिरी इमाम की असल मदद थी। शेख मुफीद को काफी इमाम ने, यानी आखिरी इमाम ने भी बहुत जो खत आए हैं, जिसको बहुत ज्यादा जो इमाम की तरफ से खतूत आए हैं वो शेख मुफीद के अहम है। ये हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये शेख मुफीद की जो किताब थी अल-मुक़निआ, उस किताब की थोड़ी सी जो शरह की थी शेख तूसी ने, तो उसी का नाम रखा उन्होंने तहज़ीबुल अहकाम। शेख मुफीद की किताब की शरह जो की उसको लाकर तहज़ीबुल अहकाम का नाम रखा इन्होंने। अच्छा, तहज़ीबुल अहकाम कौन सी किताब है? तहज़ीबुल अहकाम वो किताब है कि जिसमें रिवायत जो टकराती हैं, रिवायत 2 तरह की, मिसाल के तौर पर हम लोगों को डायरेक्ट मुज्तहिद का फतवा मिल जाता है ना, हम लोगों को डायरेक्ट मुज्तहिद का फतवा मिल गया कि तीसरी रकअत में और चौथी रकअत में बस सुभान रब्बियल आला व सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीहात अरबा 1 मरतबा वाजिब है और 3 मरतबा बेहतर है कि 3 मरतबा पढ़ा जाए। हमको डायरेक्ट नतीजा मिल जाता है, मगर ये मुज्तहिद के पास खुद एक सवाल रहता है कि वहां एक रिवायत आई है कि मासूम ने कहा बस 1 मरतबा पढ़ लो, और फिर किसी और मासूम से या किसी और रावी से रिवायत मिली कि इमाम ने कहा 3 मरतबा पढ़ो। तो अब एक मुज्तहिद के लिए ये तय करना आसान नहीं है ना कि आखिर 1 ही मरतबा वाजिब है या 3 मरतबा। तो ये जहां रिवायतें टकराती हैं, उन रिवायतों का हल कैसे हो, वो शेख तूसी ने तहज़ीबुल अहकाम में किया। मगर शेख तूसी ने जो अहकाम तहज़ीबुल अहकाम किया तो उसमें हमने जिक्र किया था कि लोगों की
एक खास चाहने वाले ने आगे कहा कि हमारी तरफ से ये रिवायतों का टकराव और उसकी वजह से बहुत से लोग शिया मजहब से दूर हो रहे हैं, इसके लिए कुछ कीजिए। इन्होंने शेख मुफीद की अल-मुक़नआ की शरह की और एक बड़ी किताब वो सामने। मगर तहजीब के बाद ये भी हमारी 4 किताबों में तहजीब का किरदार रहा, तहजीबुल अहकाम का। उसके बाद जो चौथी किताब है वो है इस्तिबसार, इस्तिबसार फी मख्तलिफा, इस्तिबसार जी फी मख्तलिफा मिनल अखबार, इस किताब का नाम रखा इस्तिबसार, यानी इसकी और ज्यादा वजाहत, इसके ऊपर और ज्यादा रोशनी किस चीज के बारे में, जो रिवायतों में तारुज हो जाता है, टकराव हो जाता है, उसकी और वजाहत के लिए किताब लिखी गई। इसीलिए शेख तूसी की ये किताब देखा जाए तो तहजीबुल अहकाम का निचोड़ जिस किताब में हो वो बनेगा इस्तिबसार। मगर फर्क है दोनों में, क्या फर्क है वो बहुत है। शेख तूसी ने इसको चौथी किताब कुतुब अरबा में इसको शुमार किया गया है। शेख की ये किताब 3 जिल्द में है, लेकिन आजकल जो छपी हुई है वो 4 जिल्दों में है। पहली और दूसरी जिल्द जो है इसकी इबादत से मखसूस है। इबादत यानी यही रोजा, नमाज, हज, ज़कात, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, ये जो है सब इबादत है। खुद अहकाम के भी कई हिस्से हैं, अहकाम इबादत। उसके बाद तीसरी जिल्द जो है वो अहकाम उकूद व ईकाआत, और दूसरे जो और भी डिटेल में। हम लोग असल में क्या है कि हम लोग है ना ये मुज्तहिद के तौज़ुल मसाइल जो देखते हैं तो सिर्फ ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अंदर ही जाके उनको देखते हैं कि इन्होंने नमाज के बारे में क्या कहा। हालांकि एक दूसरा जो पूरा चैप्टर है वो है ईकाआत। आप किसी से उकूद करें, लेन देन करें, चाहे वो लेन देन कई तरह का हो। कुछ लेन देन में जैसे आपको सूद का मामला आ जाएगा, आपको एग्रीमेंट जो घरों का मकान वाला, इजारा वाला आ जाएगा। आपका मिसाल के तौर पर ये बैंक से जो आपके एग्रीमेंट होते हैं वो, ये सारी बात उसमें भी है। एक दुकान खरीदने वाले की जिम्मेदारी क्या है, बेचने वाले की जिम्मेदारी क्या है, पूरा चैप्टर है। मान लीजिए क्या इस तरह का बिजनेस सही है कि हम पैसा पहले ही से दे दें और सामान बहुत बाद में ले, और अगर हमने उससे कह दिया कि ये सामान मेरा है तो क्या उसका वो इख्तियार है, वो खर्च उसको इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा। या सामान नहीं लिया और सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो उधार का बिजनेस सही है नहीं है, यानी ये काम सही है कि नहीं, पूरा इकाआत में। इकाआत में आ जाता है निकाह, इकाआत में अक्द है ना, निकाह यानी दो लोग, दो खानदान, दो लोगों का आपस में एग्रीमेंट। सेम उसी में आएगा तलाक, उसी में आएगा निकाह मुवक्कत, उसी में आएगा निकाह दाइम। ये सारे मसलन इकाआत में है। तो हम लोग बहुत उस तरफ नहीं जाते हैं, खुद जाके देखना चाहिए कि कौन सा बिजनेस, कौन सा काम हलाल है हराम है, वो वहां पे जिक्र होता है। तो इन्होंने जो 3 जिल्द है, पहली और दूसरी जिल्द इबादत के बारे में, तीसरी जिल्द ये इकाअत के बारे में। उसमें जो बाब है, जो फसल है, जो चैप्टर है वो 925 हैं और उसके अंदर 5511 हदीस आई हैं। इसके पहले आपको याद होगा तहजीबुल अहकाम में 15,000 से ज्यादा हदीसें थी, और शिया किताबों में, बड़ी किताबों में सबसे ज्यादा 4 किताबों में वो बड़ी मानी जाती है, उसमें रवायतें ज्यादा थी। इसमें जो है वो शेख तूसी ने जो इस्तिफसार को लिखा और तालीफ किया, उसकी वजह भी उन्होंने जिक्र किए है। ये तय है कि तहजीब के बाद इसे लिखा है। क्यों? इसलिए कि तहजीब का खुलासा है ना, तहजीबुल अहकाम का खुलासा है। इन्होंने खुद इस्तिफसार को लिखने से पहले अपना हदफ बताया, मकसद बताया। उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जिनके पास तहजीबुल अहकाम जैसी किताब पहुंची और उसमें जो रिवायतें हलाल और हराम से जमा की गई थी उसको देखा, उसके बाद उसमें भी लोग है ना, एक बहुत मोटी किताब होने की वजह से अब हर चैप्टर पे तो तारुज वाली यानी टकराव वाली रिवायतें नहीं है। मैं ऐसे नहीं ना बहुत एक अलग वादी की बात कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तारुज और ये असल में वो जो उलूम दीनिया वाले जो
बख्श के लोग हैं वो तारुफ फौरन समझेंगे। अब हम तारुफ के बाद फौरन टकराव भी कहना। जो रिवायतें, ये जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर पे रिवायत टकराव वाली मौजूद है। मसलन बहुत से वुजू, चेहरा कहां से कहां धोना है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, इसमें इस तरह की रिवायतें नहीं आई। जब रिवायत नहीं आई तो ये तो टॉपिक ही क्लियर था। तो मुमकिन है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर टकराव वाली रिवायतें हैं, और सबसे ज्यादा आदमी को तकलीफ कहां हो जाती है, जहां एक ही हमको मसला हल करना है मगर दो तरह की चीजें हैं, ये सही है या ये सही है। मुजतहिद का काम कमाल यही है कि मुजतहिद आके उस टकराव को हल कर दे। अब जैसे वही एक रिवायत है, वो कह रही है कि इमाम ने फरमाया कि एक मर्तबा तस्बीहात अरबा पढ़ लो, और इमाम ने जो जुमले इस्तेमाल किए, जो लफ्ज इस्तेमाल किए, उस लफ्ज से क्या मतलब है, वो सारी चीजें। एक रिवायत में है कि इमाम ने फरमाया 3 मर्तबा पढ़ो। अब मुजतहिद का काम यह है कि दोनों को जमा करे। तो हमारे मुजतहिदीन ने इसको जमा क्या किया, इसको आके कहा कि ये दोनों वाजिब में नहीं था, एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है, अब बेहतर है कि 3 मर्तबा पढ़ा जाए, यानी दोनों जमा हो गया। मगर ये जहां वाजिब और मुस्तहब का मामला होता है वो तो समझ में आ रहा है, मगर कुछ जगह तो और खराब हो जाएगा मामला। एक जगह मासूम फरमा रहे हैं कि ये हलाल है और किसी और से पता चला कि वो एकदम अपोजिट है मामला, तो वहां तो जमा करना भी, यानी ये मुजतहिद का खुद एक काम है। मिसाल किसी भी टॉपिक पे आप अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में जब रूल जहां बना रहे हो वहां दो चीजें हो और दोनों को सही तरह से जमा कर लेना, ये काम मुजतहिद का। तो उन्होंने कहा कि जब ये जमा हो रही थी तो ये किताब बहुत बड़ी और लोग मसलन उसकी तरफ जा रहे थे, तहजीब की तरफ, तो खास गुजारिश की गई, इसलिए उन्होंने एक खास छोटी सी किताब इसी चैप्टर में, यानी जरूरी नहीं है कि नमाज के टॉपिक पे वुजू में कहीं टकराव नहीं हुआ है तो उस चैप्टर को लाए ही नहीं, जिस जिस जगह वो टकराव है उन रिवायतों को लाए हैं और लाकर फिर उसकी सही वजाहत की है। यानी कहा जा सकता है कि तहजीबुल अहकाम जो किताब है, उस किताब का निचोड़ इस किताब में है, इस्तिफसार में। और अब फिर ये सवाल है कि आखिर इस किताब को इतनी अहमियत कैसे मिल गई। अगर ये ऐसी ही है तो इसको अहमियत भी बहुत ज्यादा मिली है। उसकी वजह भी ये है कि ये खुद उलमा के दरमियान ये खुद एक चैप्टर जिसके बारे में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि रिवायतें जहां टकरा रही हैं उसका हल कैसे निकले, इस काम को शेख तूसी ने इस किताब में किया है, इसलिए इस किताब की अहमियत खुद ब खुद बढ़ गई। खुद ब खुद इस किताब की अहमियत बढ़ गई इस्तिफसार की। अब शेख तूसी ने इस किताब में, वही हमने तहजीबुल अहकाम में भी जिक्र किया कि सारे रावी का नाम नहीं, आखिर के नाम हटा दिया या शुरू का नाम हटा दिया, इस तरह से। और आखिर में एक पूरा चैप्टर मशीखा नाम का बनाया था जिसके अंदर रावियों की डिटेल वहां मौजूद थी। शेख तूसी ने इस किताब में मोतबर रिवायत को पहले रखा, उसके बाद उससे टकराने वाली जितनी रिवायतें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो लाए हैं और अपना खुद जाती नजरिया दिया है। शेख तूसी की ये दो किताब दो अहम चीजों की तरफ इशारा है। तहजीबुल अहकाम, अब तक 3 किताब जो शियों की मोतबर 3 किताब थी ये इस्तिफसार से पहले, उसमें ये होता था कि अगर किसी ने पूछा आकर कि ये बताएं, अगर मैं नमाज पढ़ रहा था मुझे याद आया कि क्या मैंने मसा किया है या नहीं, तो अब मेरे मसाइल का हल क्या है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, फौरन इस मसले का जवाब पूछने वाले ने जो भी पूछा तो जाके उन्होंने डायरेक्ट उसूल काफी में क्या कर दिया, रिवायत ले आए, फला 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 ने फला इमाम से पूछा, इमाम ने कहा जब तक किसी चीज का यकीन न हो
तब जब नहीं, इस अमल को जो अंजाम दे रहे हो, ये अमल तो तुम्हारा शक की बुनियाद पर काबिल कबूल है, मगर अगली नमाज के लिए तुम्हें वुजू की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी को असल वुजू में शक हो जाए, तो कहने का मतलब ये है कि वो वहां पर सिर्फ रिवायत लाते थे और फतवा नहीं देते थे। शेख तूसी की दूसरी पहली किताब जो तहज़ीबुल अहकाम है, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजों को पेश किया है, फतवा नहीं है। लेकिन इस्तिबसार में शेख तूसी पहली मर्तबा मुजतहिद और मरजा और ये अहले बैत की अहादीस के ऊपर खुद फतवा देने वाला काम जो है वो शेख तूसी ने दूसरी किताब से शुरू कर दिया। अब वो रिवायत लिखते भी हैं और उस रिवायत के नीचे ये भी मेंशन करते हैं कि इसमें एक ये बुनियादी कायदे की बुनियाद पर, उसूल के एक कायदे की वजह से ये रिवायत इस तरह की नमाज के मसले को हल करती है, यानी वो जवाब भी वहां दे रहे हैं। तो ये खुद किताब एक अहम किताब है मन। और अगर इसके वो उस पर गौर फिक्र करें कि कैसे किताब है, तो ये तकरीबन शेख मुफीद ही के एतबार से जो उसमें पहला चैप्टर जो है, दूसरा कोशिश किया है उसी का, फिर उसमें भी रावियों का नाम कुछ हस्फ हो गए थे, इसमें भी हस्फ हुए हैं। और सबसे अहम जो है वो ये है, इस किताब की अहमियत वो है कि रिवायतें जो टकरा रही हैं उसका हल इसमें बताया है और बहुत अहम तरीके से। और शेख तूसी ने इस किताब में तहजीब में वो मजबूर और महदूद थे कि जो शेख मुफीद ने अल-मुक़निआ में लिखी है उसी की सिर्फ तहलील करें, मगर इस्तिबसार में और भी दूसरे ऐसे चैप्टर जिसमें इख्तलाफात होते थे उसको भी लाकर उन्होंने अपने एतबार से उसकी तहलील की है। मैं समझता हूँ बात यहीं पे खत्म हो रही है। ये शेख तूसी की इस्तिबसार वाली किताब।